not yet comfortable about releasing their toxicities, their negativities that they hold, and Yeah, later on they try to spread all around. तो अगर हमारे भीतर ही जहर है तो हम सामने वाले को क्या देंगे? सिर्फ very जहर, true. सिर्फ जहर. Very true. I will give you an example of yesterday. I'm a group of a tribe where we have to encourage each other, support each other, Okay. and in order we are helping each other to grow and develop exponentially. Okay. So अगर कोई अपना कोई भी अचीवमेंट शेयर कर रहा है तो हम उसको लव देते हैं. Too much Yeah. of love for you, too much of blessings for you. And Right. as everyone is sharing the achievement and each one is getting more and more love, you know, you can see it on our face as well. It feels Yeah. like we are just made up of love. क्योंकि Right. what we give, that we get in return. That's the Yes. law of nature, that's the law of universe, that's the Yeah. universal law. सो आप जो देते हो वही आपको मिलता है. तो अगर मैं Right. प्यार दे रही हूँ तो मुझे प्यार मिलेगा. अगर मैं Yes. जहर बांट रही हूँ, आक्रोश, एंगर, हेट्रेड, Yeah. डिस्गस्ट, जेलसी, मतलब जितने भी Right. नेगेटिविटीज मेरे अंदर पड़े हुए हैं, अगर मैं उनको निचोड़ निचोड़ के सामने डालती जाऊं, वापस मुझे वही मिलेगा और उसी का ग्रोथ होगा, एंड देन डेबिलिटी विल बी मोर एंड मोर. तो आज Yeah. हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारा मानसिक और इमोशनल हेल्थ है, उसके Yes. बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं. तो आज मेरे साथ हैं नीलिमा मोहल जी, जो कि वर्तक कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, और वो बच्चों को हेल्प करती हैं कि कैसे वो अपने एकेडमिक्स प्रेशर और कैसे वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर सकती हैं. तो नीलिमा जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू फर्स्ट टू शेयर Yeah. whatever you do, how you help people. आप आई विल रिक्वेस्ट कि आप हिंदी इंग्लिश मिला के शेयर करें so that the Okay. people will be able to understand more. So how do you help people? What you do? Just share it with our audience so that they will be able to connect more. Yeah, sure. Thank you, Anupam, for inviting me. I'm Lilima Mohol. I'm a counselor and psychotherapist. I work with Vartak College, help students deal with their past traumas or health issues or academic issues, family issues, and through various therapies like meditation and yoga, meditation, art therapy, drawing therapy. I help the students to come out, bring out their thoughts, more negative, positive, whatever it is. And in this manner, I help them to come out and find solution for themselves. Yeah, Brilliant, Nilima ji. So you're doing a great job helping those youth who really need us a lot. So yeah, as you're working with the college students there, and you have become yeah. a kind of icon, a kind of messiah for them, where you help them to understand Yeah, their emotions and work on them constructively, giving them therapies through yoga or art therapy or dance therapy. There is so much, and I yeah, know that you use them all because I'm also in this mental health awareness yeah, forum, and I know what kind of problems our teenagers, our yeah. youth are facing Teenagers. today. And the Very true. main issue over there is that it somehow is submerged in the lane only. No one is ready to talk about it yet. Yeah, very true. प्रॉब्लम है पर उस प्रॉब्लम को दिखाना नहीं है. सामने सब Yeah, सब साफ है पर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. yeah. और अगर मान भी लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन के साथ कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, आज अचानक से ये कैसे पैदा हो गया, पहले I तो know. नहीं था. बट दे फॉरगेट दैट इट वाज देयर, जस्ट Yeah, they very were true. not aware. Now more and more people are getting aware, getting conscious Yeah. about this. So what do you think about this mental health stigma, and how do you think that we can work on it
as Yeah, actually we all, I have been working for this for about 3 years right now, where I have been yeah. spreading awareness on this thing for, like, with various mentors, with various groups, tribes. Whatever we can do, we are trying to do. But according to you, I would like to know from you, what do you think that is required so that we can work on this stigma, we can remove this taboo of the words related to mental health? I think we need to start speaking up openly regarding the mental health. हाँ, ये someone is mentally ill, तो उसमें बुरा क्या है? जैसे आप डायबिटीज़ के लिए जाते हो डॉक्टर के पास या बीपी के लिए जाते हो, वैसे ही मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो, तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं होगा। आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। लेकिन अगर आपको मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो यू हैव टू दैट इम्पैक्ट्स योर बॉडी। इट स्टार्ट्स पेनिंग और somewhere your sugar levels increase depending on your weak area of your body. So you have to really accept that everyone has to go through the mental illness and mental stress. So it is not wrong. Approaching a psychotherapist or psychiatrist is absolutely not wrong. And after all, it is up to us how you feel good and what you feel about yourself. You have to accept yourself as you are and not judge on others' views, whatever they are, positive or negative. Don't judge yourself on what others say to you. Or if you're feeling that you need to approach some psychiatrist or psychotherapist like us, feel free to approach us because only then what you want, you know the best. So you have to take that one step forward and openly talk about your mental illness. There is nothing wrong to share कि मुझे ये तकलीफ है। थैंक यू सो मच नीलिमा जी। आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग टू द ऑडियंस ओवर हियर, कि जब हम कहते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, तो हम एक बार गोली ले लेते हैं और फिर सोचते हैं चलो खुद से चला जाएगा सर दर्द। दोबारा सर दर्द होता है, दोबारा गोली ले लेते हैं। बट जब यही चीज़ बार बार चलते रहता है, तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं और फिर पूछ कर दवाइयाँ लेते हैं। इसी तरीके से जब तकलीफ़ हमारे भीतर हो, क्यों हम उस तकलीफ़ को सोचते हैं कि अपने आप चला जाएगा और कभी भी डॉक्टर की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो अगर हमें सर दर्द के लिए डॉक्टर की ज़रूरत हो रही है, तो जो भीतर दर्द है, जो अंदर पेन है, उसके लिए भी कभी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, और हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया जिस तरीके से फिज़िकल हेल्थ की अवेयरनेस हम अवेयर, अभी जैसे योगा एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए सब इतना ज़्यादा जागरूक हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है और बॉडी का नरिशमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो चाहे डाइटिशियन के पास जाना है या डॉक्टर के पास जाना है या फिजिशियन या फिर कोई भी हेल्थ ट्रेनर के पास जाना है, और इस फिजिकल बॉडी को हम स्वेटिंग के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, डिफिकेशन के थ्रू प्योरीफाई करते हैं, टॉक्सिसिटी रिलीज करते हैं। तो फिजिकल बॉडी तो अपने आप करो ना करो, अपने Yeah, it gets टॉक्सिसिटीज को toxic. क्लीन कर रहा है। Yes. व्हाट अबाउट योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ? आर यू डूइंग दैट? आर यू रियली रिलीजिंग द टॉक्सिसिटी, जिसको हम संस्कृत में विसर्जन कहते हैं? तो आज का दिन इसीलिए मैंने चुना था, जो विसर्जन है, जिसमें हम Oh, गणपति का 11वें दिन पे विसर्जन करते हैं। yeah. और ऐसा मानते हैं कि जब गणपति जाते हैं तो अपने साथ हमारे घर के सारे व्याधि, दुख, प्रॉब्लम्स सब लेते हुए जाते हैं। तो क्यों ना अपने इस जो मानसिक व्याधि है,
जो मानसिक तकलीफ़ है, उनका भी विसर्जन किया जाए। जो हमारे अंदर एंगर पड़ा हुआ है, जो डिस्गस्ट पड़ा हुआ है, जो जेलसी, हेट्रेड, ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भीतर पड़ी हुई हैं, उनका विसर्जन हम कैसे करें? और क्या हमारे जो लोग सुनने वाले हैं, उनको ये नहीं समझता है कि उनका भी विसर्जन उतना ही ज़रूरी है, जितना फिज़िकल टॉक्सिसिटीज़ का निकलना। तो वेरी ट्रू। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड आई होप जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको ये समझ पाए कि कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। और दूसरी बात, अगर आप मेंटली सिक हैं, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। आपका फिजिकल हैंड्स, लेग्स सब काम करना बंद कर देगा, तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आज के डेट में डॉक्टर्स के पास इतने सारे केसेस हैं जिसमें उनको पता ही नहीं चलता है कि पेन क्या है। Yeah. एंड थैंक यू सो मच ऑल द अदर ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू अस।